ہمارا سب کچھ بہ گیا، اسکول میں پناہ لی تو برساتی پانی نے اسے بھی ڈبو دیا۔ جھنگ کے سیلاب متاثرین نے دکھ بھری داستان سنا دی۔ کہا کھانے میں چاولوں کا ایک پیکٹ ملا، 30 لوگ کیسے ایک پیکٹ سے پیٹ بھرے۔ سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے بارش میں بھیگتے رہے۔ کچھ لوگوں نے چارپائیوں پر پلاسٹک باندھ کر بچوں کو بارش بچانے کی کوشش کی۔ حیدرآباد سے آنے والا ریلا جلال پور بھٹیاں سے ملحقہ آبادیوں میں تباہی مچاتے ہوئے گزر گیا۔ سینکڑوں دیہات زیر آب، ہزاروں ایکڑ دھان کی فصل، قیمتی اشیاء، گھر اور مال مویشی پانی میں بہہ گئے۔ عارف والا میں دریائے ستلج کے ریلوں نے تباہی مچا دی۔ متاثرین خوراک اور مویشیوں کے چارے کے لیے پریشان۔ کوٹ مومن میں سیلاب، 40 سے زائد دیہات زیر آب۔ مڈرانجا روڈ پر ریلے سے 35 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ درجنوں دیہات میں لوگ محصور۔ حافظ آباد ریلوے اسٹیشن اور ریلوے ٹریک زیر آب۔ ملتان میں ہیڈ محمد والا کے مقام پر آئندہ 24 گھنٹے میں 8 لاکھ کیوسک کا ریلا پہنچنے کا امکان۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن ہوا، ہزاروں لوگوں کی جانیں بچ گئیں، 6 لاکھ کے قریب لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا، 4.5 لاکھ مویشیوں کو بھی بچایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پریس بریفنگ، کہا بھارت نے سپل ویز کھولے جس سے دریا بفر گئے، جتنا پانی آیا اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں، یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا کام نہیں، ہم سب عوام کو جواب دیں ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پی ڈی ایم اے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، وزیر اعلیٰ کو کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز نے ویڈیو لنک کے ذریعے بریفنگ دی۔ مریم نواز نے کہا ریلیف اور ریسکیو سرگرمیوں کو مزید تیز کریں، ریسکیو کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کریں۔ متاثرہ اضلاع کی انتظامیہ کل تک ڈرون فوٹیجز مجھے دیں، ہر ضلع کی انتظامیہ کھانا بانٹنے اور دیگر کاموں کی فوٹیجز مجھے بھیجے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر سیلاب متاثرین کے لیے پہلی بار ڈرون سروس کا آغاز۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں دریائے راوی، چناب اور ستلج میں ڈرون سے نگرانی جاری ہے۔ پنجاب کے سیلاب متاثرہ اضلاع میں طوفانی بارشیں، لاہور میں طوفانی بارش کے بعد مختلف علاقوں میں پانی جمع، جناح اسپتال کی ایمرجنسی میں پانی بھر گیا، اسپتال کی چھت ٹپکتی رہی۔ سب سے زیادہ 135 ملی میٹر بارش نشتر ٹاؤن میں ریکارڈ۔ شاہدرہ کے علاقے میں لوڈر رکشہ الٹ گیا۔ برکت مارکیٹ میں فائر بریگیڈ کی گاڑی کئی گھنٹے گڑھے میں پھنسی رہی۔ بیدیاں روڈ پر اسماعیل پورہ میں ایک گھر کی چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے۔ ننکانہ صاحب میں بارش سے گلیاں، بازار، تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ ملکوال میں شدید بارش کے باعث مکان کی چھت گرنے سے 9 ماہ کا بچہ جاں بحق، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ اگلے 2 سے 3 روز تک مزید بارشیں ہوں گی۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے پنجاب کے دریاؤں میں انتہائی اونچے سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا۔ کہا 2 سے 3 ستمبر کے دوران دریاؤں کے بالائی حصوں میں شدید بارشوں کا امکان ہے۔ بارش کے بعد راوی، ستلج اور بیاس میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ اگلے 24 گھنٹے میں دریائے چناب میں ہیڈ تریمو کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہوگا۔ ہفتے تک 10 لاکھ کیوسک کا ریلا سندھ پہنچے گا۔ پنجاب میں سیلاب سے اب تک 30 افراد جاں بحق، 15 لاکھ سے زائد متاثر ہوئے ہیں۔ تو ہماری پریپریشن ریڈی ہیں اس وقت، جو ہے جو بھی دریا کے ساتھ جتنے بھی جو بند والا ایریا ہے وہاں پہ نقل مکانیاں لوگوں کی شروع ہو چکی ہیں۔ تخمینہ لگا ہے جو کچے کے علاقے میں لوگ رہتے ہیں ان کی کوئی تعداد 16 لاکھ ہے۔ 2 یا 3 ستمبر کی رات سیلاب سندھ میں داخل ہوگا۔ سندھ میں 16 لاکھ افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔ 102 حساس مقامات پر مشینری پہنچا دی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں سیلاب سے نمٹنے کے لیے تیاریاں کر لیں۔ صدر زرداری اور بلاول بھٹو خود صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں۔ دریا کنارے آبادیوں سے نقل مکانی شروع ہو چکی ہے۔ کچے کے علاقے سے بڑی تعداد میں لوگوں کا انخلا ہو گیا۔ کوئی نہیں چاہتا کہ اپنا گھر چھوڑ کر امدادی کیمپوں میں رہیں۔ عوام سے اپیل ہے سیلاب والے علاقوں سے نکل جائیں۔ پوری توجہ انسانی جانوں کو بچانے پر ہے۔ گڈو بیراج 12 لاکھ کیوسک تک ریلا برداشت کر سکتا ہے۔ توقع ہے اتنا ہی پانی آئے گا جتنا بیراج برداشت کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا سیلابی صورتحال کی مانیٹرنگ کے لیے مقرر وزراء سے رابطہ۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا منگل اور بدھ کی رات دریائے سندھ میں سیلاب کا خدشہ ہے، دریا کے کنارے بندوں کے نہری نظام کی کڑی نگرانی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ صوبائی وزراء کے ساتھ آج صبح گڈو بیراج کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف چین پہنچ گئے۔ تیانجن کے ہوائی اڈے پر وزیر اعظم کا شاندار استقبال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی ہمراہ ہیں۔
वज़ीर-ए-आज़म 31 अगस्त से 1 सितंबर तक SCO समिट में शिरकत करेंगे। इजलास से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सदर शी जिनपिंग और चीनी हम मनसब से मुलाकात भी शेड्यूल। इजलास में शरीक दीगर सरबराहान मुमलिकत से भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म चीन के मुमताज़ कारोबारी इदारों के सरबराहान से मिलेंगे। बीजिंग में पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। Pakistan and China stand as key partners. The bond between Pakistan and China, our valued neighbor, as true iron brothers. पाकिस्तान और चीन की दोस्ती एतमाद और स्ट्रेटेजिक हमाहंगी पर मबनी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं सदर शी जिनपिंग की क़यादत और बेल्ट एंड रोड समेत तरक्याती इक़दामात को सराहते हैं। SCO यूरेशिया में सिक्योरिटी, तिजारत, तवानाई और सकाफती ताउन का अहम प्लेटफॉर्म है। कसीरुल जहती इस्तेहकाम और जामी तरक्की के फ़रोग में SCO का किरदार मज़ीद अहम हो गया। चीनी क़यादत और रुकन ममालिक के सरबराहान से तामीरी मुलाकातों के मुंतज़र हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत का दौरा मंसूख कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में होने वाली क्वाड समिट में शिरकत करना थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, अमरीकी तिजारती टीम ने भी 25 अगस्त को भारत का दौरा मंसूख कर दिया था। अमरीका और भारत का तिजारती मुआहिदा फिर खटाई में पड़ गया। ट्रंप ने दौरा भारत में होने वाले मुजव्वज़ा मंसूबे भी खत्म कर दिए। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। जंग, फैसलाबाद, चिन्योट और टोबा टेक सिंह में रेस्क्यू ऑपरेशन। आबादी को बचाने के लिए जंग और फैसलाबाद में 3 मकामात पर बंद में शगाफ डाले गए। हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए सैलाब मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। तांदलियावाला और टोबा टेक सिंह में रेस्क्यू कैंप्स। मुतासरीन को जरूरी तिबी इमदाद और मुफ्त अद्वियात की फराहमी। मुश्किल की घड़ी में पाक फौज अवाम के शाना बशाना। पाक आर्मी का KP में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। स्वात के इलाकों मकान बाग और मुलाबाद में राशन, खाने पीने की अशिया तकसीम की गई। सैलाब मुतासरीन ने इमदादी कार्रवाइयों पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली तक इमदादी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पाकिस्तान साड़ी तरती है, ये पाकिस्तान साड़ी जीतते जाने के मैं अपनी सिविल एजुकेशन का इतना धन्यवाद करता है। एंड दे वर स्टैंडिंग विद अस लाइक एन आयरन एंड लाइकवाइज साड़ी जी पाक फौज जवान ने मेजर साहब उदों तक नहीं गए जब तक कि आखिरी छड़ा जो उसको रेस्क्यू नहीं सामने। जो साड़ी करतारपुर साहब और जो अगे तुसी कर रहे हो करोगे ये वास्ते अगेन ग्रेटफुल सर। सिख कम्युनिटी का दरबार साहब करतारपुर में बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। सिख रहनुमा रमेश सिंह का कहना था, बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। सिविल इंतजामिया भी हमारे साथ खड़ी रही, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। पाक फौज के जवान आखिरी शख्स की बाहिफाजत मुंतकली तक खड़े रहे। रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि पाकिस्तान हमारी धरती और हमारी जान है। पाकिस्तान और सिखों का रिश्ता हमेशा कायम और दायम रहेगा। पेशावर और खैबर में मूसलाधार बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग। पेशावर के बडनी नाला और दरामंगी में सैलाबी सूरत हाल। जिला खैबर में जमरूद के मकाम से बड़ा रेला गुजर रहा है। पाक अफगान शाहरा का एक हिस्सा सैलाब में बह गया। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। वज़ीर आला ने कहा, सूरत हाल मामूल पर आने तक मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू टीमें मौजूद रहें। मुतासरीन के लिए खाने पीने और आर्जी रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए। जिला इंतजामिया और रेस्क्यू इदारे अलर्ट रहें। क्लाउड बर्स्ट से मुतासरा बुनेर में भी मूसलाधार बारिश से दरिया में बहाव तेज। नदी नालों में तुगयानी आ गई। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। बन्नू, करक, मालाकंड, एबटाबाद में भी बरसात। आज़ाद कश्मीर के अजला, बाग, मीरपुर और भिम्बर में बारिशों के बाद नदी नाले बिफर गए। पानी घरों और मार्केटों में दाखिल हो गया। अमीर जमात इस्लामी का लाहौर चुंग में अल-खिदमत की खैमा बस्ती का दौरा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, नून लीग और PTI लोगों को डबोने की जिम्मेदार है। इनके दौर में गैर कानूनी NOC जारी हुए। बेघर होने वालों का मुकदमा लड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी ने खैमा बस्ती में सहूलतों का जायजा लिया। मुतासरीन से मुलाकात में उनके मसाइल सुने।
हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान की लगातार दूसरी कामयाबी, मुत्तहिदा अरब अमारात को 31 रन से हरा दिया। आसिफ खान के 35 गेंदों पर 77 रन रायगा। यूएई की टीम हदफ के ताक़ुब में 8 विकेटों पर 176 रन बना सकी। हसन अली ने 3 और मोहम्मद नवाज ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 207 रन बनाए। साइम अयूब 69 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। हसन नवाज ने 26 गेंदों पर 56 रन बनाए। हम इसके ऊपर अफसोस का इजहार कर सकते हैं अगर ये इस किस्म का एहतजाज अपनाएंगे माइनस हो जाएंगे। भाई या तो अगर फिर आपने सिस्टम से टकराना है तो फिर सिस्टम से बाहर चले जाएं और जाके बाहर सिस्टम से टकराएं, फिर सेनेट भी छोड़ दें ना। पीटीआई इस्तीफे वाले एहतजाज का रास्ता अपनाएगी तो माइनस ही हो जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीटीआई के इस्तीफों पर हम अफसोस ही कर सकते हैं। सिस्टम से टकराना है तो सिस्टम से बाहर जाकर टकराएं। सेनेट से भी इस्तीफे ने। पीटीआई असम्बलियां ना तोड़ती तो दावे से कहता हूं कि 9 मई ना होता। हम 9 मई ना होता तो पीटीआई पर इतनी मुश्किलात भी ना होती। अली मोहम्मद खान ने कहा, सियासत में एहतजाज भी किया जाता है और इस्तीफे भी लिए जाते हैं। माजी में सूबाई असम्बलियां तोड़ी तो सोच थी कि आइन के मुताबिक इलेक्शन हो जाएगा। हमें क्या पता था कि आइन और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं माना जाएगा। नौ मई केस में बानी पीटीआई के भांजे शाहरेज खान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की जानिब से मुलजिम पे जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद और धमकियों के केस में मुलजिम फरहान गनी और दीगर की रिहाई पर अदालत बरहम। तफ्तीशी अफसर ने रिहाई से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश की तो अदालत ने पूछा, मुलजिमान कहाँ हैं, क्यों पेश नहीं किया गया? देखेंगे तफ्तीशी अफसर ने जो इख्तियार इस्तेमाल किया वो कानून के मुताबिक है भी या नहीं। मुलजिमान की रिहाई से मुताल्लिक 497 की रिपोर्ट पर मुलजिमान को नोटिस। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुलजिमान की बेगुनाही की रिपोर्ट मंजूर कराने अदालत पहुंच गए। एटीसी जज से ओपन कोर्ट में पुलिस रिपोर्ट पर ऑर्डर करने की इस्तदा। अदालत ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा, पुलिस की 497 की रिपोर्ट पर 2 सितंबर को ही फैसला होगा। आप केस की तारीख पर आए। कोहाट में शहीद एएसआई इशफाक की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में डीआईजी, कमिश्नर, डीपीओ समेत दीगर ने शिरकत की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी दी। दहशतगर्दों ने गश्त पर मामूर क्यूआरएफ की गाड़ी पर हमला किया जिसमें एएसआई इशफाक शहीद, 2 कांस्टेबल जख्मी हुए थे। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। वजीर दाखिला का फितनाल खारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस को खिराज तहसीन। शहीद एएसआई इशफाक को खिराज अकीदत। कहा, केपी पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करते हैं। कराची के इलाके कस्बा कॉलोनी कटी पहाड़ी के करीब मेडिकल स्टोर पर फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक। पुलिस ने 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल को 3 गोलियां मारी गईं। आबाई ताल्लुक स्वाद से था। मकतूल एहसान का जमीन का तनाजा चल रहा था। मुलजिमान गुज़श्ता रोज भी मकतूल की तलाश में आए थे। कराची में गरीबाबाद रेलवे फाटक पर 2 ग्रुपों में तसादुम, 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। झगड़े के दौरान नामालूम अफराद ने 5 झुग्गियों को आग लगा दी। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पुलिस के मुताबिक रेलवे फाटक के करीब रिहायशी इलाके के कुछ लड़के झुग्गियों में नशा करते आते थे। झुग्गियों को रिहायशियों की जानिब से नशे से मना करने पर झगड़ा शुरू हुआ। पुलिस वाक़े के हवाले से मजीद तहकीकात कर रही है। सऊदी अरब जाकर भीख मांगने वाले माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सऊदी सफीर को बता दिया। मुलाकात में वजीर दाखिला ने कहा, भिखारी माफिया के खिलाफ 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। मोहसिन नकवी ने पाक भारत कशीदगी में मुखलिसाना, बरादराना और मौसर किरदार पर सऊदी हुकूमत और सफीर का शुक्रिया अदा किया। कहा, जंग हो या अमन, सऊदी अरब ने हर मौके पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। सऊदी सफीर ने कहा, पाकिस्तान हमारा बरादर दोस्त मुल्क है। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। कराची में तैनात अमरीकी काउंसिल जनरल चार्ल्स गुडमन की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात। काउंसिल जनरल का कहना था, अमरीकी सरमाएकार पाकिस्तान में सरमाएकारी में दिलचस्पी रखते हैं।
गवर्नर सिंध ने कहा पाकिस्तान और खास तौर पर सिंध में अमरीकी सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। SIFC के तहत बैरूनी सरमायाकारों को मुआवनत फराहम की जा रही है। गवर्नर सिंध ने अमरीकी काउंसिल जनरल को कराची की फूड स्ट्रीट बंस रोड का दौरा करने की भी दावत दी। मुआविन खुसूसी बिलाल बिन साकिब की बिटकॉइन एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत। बिलाल बिन साकिब ने अपने खिताब में पाकिस्तान वर्चुअल स्टेटस रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम को उजागर किया। खित्ते में ये अपनी नौयत का पहला और आज़ाद रेगुलेटरी इदारा है। कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर के साहबजादे एरिक ट्रंप भी बतौर स्पीकर शरीक हुए। वजारत खजाना के एलामे में कहा गया आलमी कॉन्फ्रेंस में अमरीकी क़यादत के नुमाइंदों की मौजूदगी में पाकिस्तान के वजीर को भारतीय माहिरीन से दाद मिली। पाकिस्तान को अमेरिका में मछली बरामदात की 4 साल इजाजत मिल गई। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर जुनैर अनवर चौधरी ने बताया इजाजत पाकिस्तानी सी फूड मयार का आलमी एतराफ़ है। पाकिस्तानी फिशरीज अमरीकी मयार पर पूरा उतरी हैं। समंदरी मसनूआत की बरामदात में तसलसल मुमकिन हो गया है। पाकिस्तान की बरामदात को अमरीका की मंजूरी से इस्तेहकाम मिलेगा। गजा में इसराइली फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। 24 घंटों में 50 फलस्तीनी शहीद। इमदादी मराकज़ पर हमलों में 10 अफराद जान से गए। 3 बच्चों समेत 10 अफराद भूख की वजह से दम तोड़ गए। फाको से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 332 हो गई। 124 बच्चे शामिल हैं। पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी जारी है। सेफ जोन में भी काबिज फौज की जारियत से महफूज नहीं। मगरबी किनारे में भी ऑपरेशन के दौरान दर्जनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद की जाए। जर्मनी में इसराइल के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। फ्रैंकफर्ट में 10,000 से ज्यादा अफराद जमा हुए। मुजाहिरीन का कहना था आलमी जंग के खतरात से खौफसदा हैं। फलस्तीनी अवाम के हुकूक के दिफा के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत से इसराइल पर दबाव डालने का भी मुतालबा किया। और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मलीर में दारुल उलूम मस्तिया नईमिया आमद। मुर्तज़ा वहाब ने नात रसूल मकबूल पेश की। मेयर ने मुफ्ती जान मोहम्मद नईमी से मुलाकात में जश्न ईद मिलादुन नबी के इंतजामात पर गुफ्तगू की। कहा शहर भर में फूल प्रूफ इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। बल्दिया उज़्मा मरकजी शाहराहों इमारतों को सजाएगी।